Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we shall talk about causes of War of Independence in 1857 in India and why it happened. This is part one of the series of causes of War of Independence because it is a very lengthy topic. In this topic, we shall not go directly to the war of causes of war. In fact, we shall talk about the role of East India Company from 1600 to 1857. It will be a very brief summary of the facts. East India Company was chartered in 1600 to travel from UK or England to India for trade and for importing silk, cotton and spices like cardamom and cinnamon. In India, British East India Company was not the only trading company. Rather, there were many European countries who had their trading companies or for importing silk, cotton, and spices. Like Portuguese came to Calicut in 1498, Dutch came in Pulicat in 1595, and England. British East India Company developed its stations at Surat city in 1608, and then Denmark came into Strankubar 1616 near Tamil Nadu, and then last but not the least, French trading company came in Pondicherry in 1664. So there were five companies and five different European countries, and they were the arch rivals of each other for monopoly over trade in India. वो सब एक दूसरे के साथ भी लड़ते रहे कि इस इंडिया के ट्रेड के ऊपर सबसे ज़्यादा उनका जो है वो मोनोपली हो, लेकिन ऐसा ना हुआ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द मोस्ट सक्सेसफुल वन. उन्होंने सबको बाकियों को भी छोटी छोटी स्किरमिशेस और जंगें करके उनको भी यहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया था, एंड दे become the hegemon in the region. So let's go ahead that how a trading company became the raiders of India. So this was the company was stationed only in a one building and it had only 5 windows. So it was not the British government actually that seized India at the end of 18th century, but it was a dangerously unregulated private company headquartered in one small office in London, and it was being managed by an unstable sociopath, Robert Clive, according to an article of the Guardian Post. And here you see the picture of Robert Clive. He was very clever and a very cunning person who was the biggest looter and plunderer of the wealth of India, and he transformed actually the International Corporation of East India Company into an aggressive colonial power, and the Indian subcontinent was colonized by Robert Clive. He was the pioneer of that. So how things went, let's see in so the International Corporation was transformed into an aggressive colonial power, and initially it had 250 clerks and 20,000 locally recruited Indian soldiers, and from there on this is their strength roughly in 1750s, and by 1803 they had 260,000 soldiers. The East India Company had 260,000 soldiers in its private army or the company's army, and this was twice the strength of army of England at that time. So you can imagine कि जब एक कंपनी के पास अपने मुल्क से ज़्यादा दुगनी फ़ौज हो तो उसकी ताकत का क्या आलम होगा. सो ये चीज़ें थी, और and they seized and subdued entire subcontinent in less than a half century. 50 साल से कम वक्त के अंदर अंदर उन्होंने पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था. ये कैसे हुआ ये हम इस मैप के ऊपर देखते हैं. सबसे पहले जो कंसिडरेबल जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो वार थी वो बैटल ऑफ प्लासी थी इन बंगाल, जो 1757 में लड़ी गई, एंड इट वाज अगेंस्ट नवाब सिराजुद्दौला ऑफ बंगाल. और उसमें अब ये एरिया जो मार्क किया गया सर्कल के अंदर बंगाल का, दैट दिस रीजन वाज केम इनटू द कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. After that, Battle of Buxar, it was fought in 1763, and it was actually a combo or union of 3 leaders from Mughal Emperor Shah Alam II and Nawab Shujauddaulah of Awadh and Mir Qasim. He was the Nawab of Bengal at that time, and the war was fought in Awadh state. However,
Britishers won, East India Company won the war, and the areas you see highlighted in light blue shape, you can see Bengal, Bihar, Odisha, Patna, Lucknow, Delhi and Awadh. Their auxiliary control went into the hands of East India Company after the Battle of Buxar. After that, there was a very important area, states of Hyderabad and Mysore in southern India. So, and these states were actually aligned with Napoleon, French Napoleon, and it was very painful for Britishers to bear an ally of French and Napoleon Bonaparte on the soil of India when they was aggressively expanding their territories. तो उन्होंने सबसे पहले मैसूर को टारगेट किया कि ये जो फ्रांस की इन्वॉल्वमेंट है वो कम से कम हो. तो सबसे पहले फर्स्ट वार जो है एंग्लो मैसूर वार, यानी कि मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो वार थी इंग्लैंड के साथ 1767 से लेकर 1769 तक हुई. इसमें कंपनी को शिकस्त हुई और इस तरह की फिर 4 जंगें 1799 1799 तक जारी रहीं. और 1799 में अब ये देखें काफ़ी अच्छा खासा टाइम पीरियड है. इसमें दी मैसूर स्टेट वाज टेकन ओवर बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी और यहाँ पर फिर एक पपेट गवर्नमेंट बिठा दी गई और इसमें इट वाज अ बिग हर्डल फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी. तो ये भी उन्होंने एरिया ले लिया था. यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कोस्ट थी मालाबार की जो कि इनके ट्रेड के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल थी. तो उन्होंने यहाँ पर भी अपना कब्जा कर लिया था बंगाल के बाद. आफ्टर दैट दे स्टार्ट द नेक्स्ट बिगेस्ट पावर इन India was the Maratha wars, Maratha empires, and they started Anglo-Maratha wars. The first war was in 1775 and the third and conclusive war was fought in 1817 to 1818. तो इन वार्स के एंग्लो मराठा वार्स के नतीजे में ये सारे का सारा एरिया आप देखें पूरे का पूरा इंडिया जो यानी कि जिसे इंटायर इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जितने भी आपकी जो है वो एमपी का एरिया है सारे का सारा कांकर हुआ और सारे का सारा अनेक्स्ड हो गया विद ब्रिटिश. और अब यहाँ तक इसके बाद अब मेजर पावर्स जो रह गई थी तो वो पंजाब और सिंध में थी. सो ईस्ट इंडिया कंपनी turned towards the Sikhs and in Punjab after the Maratha wars, and the first Maratha Anglo-Sikh war was fought in 1845 to 1846 and second war 1848 to 1849 which was won by company and Punjab was taken by company in 1849. Okay, and after that, so you see this area was also taken over. So all of the India is under the hands of East India Company. And after that, Battle of Miani and Hyderabad was fought in 1843 by the General Napier in Sindh, and as a consequence of these wars this area was taken. So whole of the subcontinent was taken over by East India Company in less than 47 years. From 1763 to 1803 they had taken over the Marathas, and conquering of Sikh Punjab and Sindh came in the later halves of first half of 19th century. So let's go ahead. आपने यहाँ पे देखा कि कैसे उन्होंने इतनी जंगें करके और अपने पूरे का पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को सीज कर लिया था. एक ट्रेडिंग कंपनी, एक मल्टीनेशनल जो ट्रेडिंग कंपनी थी उसने एक रेड किया ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट और सब एरियाज को सबजुगेट कर लिया. सो लेट्स सी इन दिस these happenings in the form of a timeline. So first of all, in 1600 East India Company came to India for trading silk, cotton and spices and established at Surat. In 1640 they created an trading center at Madras. In 1651 they established a factory at Hughley, and in 1690 they came to Calcutta and created a trading post there. And in 1696 they established Fort William in Calcutta. So they were fortifying themselves. ये बहुत बड़ी बात होती है कि वो डिफेंसेस अपने बना रहे हैं. 45 किला बंद होना, किला बनाना, ये एक मुल्क के डिफेंस के ऊपर इसकी बेरिंग होती है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है. 1696 में they made Fort William. Fort William has very importance in the history of East India Company.
सो इस सारे एरा में 1600 से लेकर 1696 तक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बाकी जो उसके यूरोपियन राइवल्स थे लाइक पुर्तगीज़ एंड फ्रेंच, उनके साथ भी उनकी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है। सो इसके बाद क्या हुआ कि 1707 में किंग औरंगजेब डाइज एंड उनकी वफात के बाद मुग़ल जो एम्पायर थी दैट वाज शटर्ड एंड दैट वाज डिसइंटीग्रेटेड एंड वीकेंड अ लॉट, और उसकी वजह से वो फ़ायदा उठाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। एंड व्हाट दे डिड, they started the Battle of Plassey, and in Battle of Plassey Nawab Sirajuddaulah of Bengal was defeated, so Bengal was taken, जैसे हमने पहले देखा। In 1763 Battle of Buxar were fought, in which battle Nawab of Awadh Sirajuddaulah and Mughal Emperor Shah Alam II, he was very young at that time, and Mir Qasim, who was the Nawab of Bengal in 1763 after Nawab Sirajuddaulah, they participated and they made a combined force against the East India Company, and the fight was done in the state of Awadh. However, British East India Company won this war, so Bengal and Awadh and the Delhi was practically taken over by Britishers after the Battle of Buxar. So this was very important. Battle of Plassey gave Bengal, Battle of Buxar gave Awadh Bengal and control of Delhi also, and Mughal emperor practically ceased to exist after this. मतलब कि उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी थी जब, क्योंकि उससे आगे हमें भी जो बात करने वाले हैं इसके बाद हुआ ये कि दीवानी ऑफ बंगाल जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी शाह आलम II को। वो एक बड़ा ही एक जिसे कहते हैं कि पेनफुल इवेंट ऑफ हिस्ट्री है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चीटी की बैटल ऑफ बक्सर के बाद शाह आलम II के साथ, और शाह आलम II से ये मजबूर करके उससे ये लिखवाया कि उसे वो दीवानी ऑफ बंगाल का कंट्रोल दे दे। सो व्हाट हैपेंड दैट यंग शाह आलम II वाज फोर्स्ड इनटू एन एक्ट ऑफ इनवॉलंटरी प्राइवेटाइजेशन, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो मुग़ल एम्पर की जो गवर्नमेंट थी उसको प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया, उसके डिफरेंट पार्ट्स को। एंड दीवानी ऑफ बंगाल विच इज़ ट्रेजरी ऑफ बंगाल, जिसे ख़जाना कहते हैं, यानी कि ख़जाना ब्रांच, यानी कि महकमा ख़जाना जिसको कहते हैं, दीवानी ऑफ बंगाल वाज गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मुग़ल रेवेन्यू ऑफिशियल्स इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा were replaced with English traders and they were appointed by Robert Clive, जिसकी तस्वीर अभी आपने पहले देखी है, and he was the governor of Bengal at that time. So revenue collection of Mughal Empire at Bengal was subcontracted to powerful multinational corporation who had its own army, यानी कि मुग़ल बादशाह ने टैक्स लेने का, लोगों से टैक्स इकट्ठा करने का और रेवेन्यू कलेक्ट करने की जिम्मेदारी जो थी वो अपने सरकारी अहदेदारों से लेके ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को दे दी, जिसको हेड कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव, और उनके अपने ख़जानों की हिफाजत करने के लिए एक आर्मी भी थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो हुकूमत है वो प्रैक्टिकली कायम हो चुकी है, और मुग़ल एम्पर की जो एम्पायर है वो प्रैक्टिकली हैज़ सीज टू एग्जिस्ट, यानी कि उसकी कोई हैसियत नहीं रह गई। और उसके बाद शाह आलम II ने एक जो है वो दिल्ली के महल से बाहर किसी जगह पर उसको ठहराया गया था, और अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश आर्मी और ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी, और उसके बाद उसकी एक सिंबॉलिक हैसियत रहेगी थी मुग़ल एम्पर की, वरना उसकी कोई प्रैक्टिकली कोई हैसियत इस वार के बाद, वार ऑफ बक्सर के बाद नहीं थी। और जब ये ट्रीटी हो गई तो इस ट्रीटी के बाद तो फिर कोई हैसियत उसकी नहीं रहेगी। जब टैक्स जो है वो अगर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इकट्ठा करना है तो फिर मुग़ल एम्पायर की कोई हैसियत नहीं रह जाती थी। सो ये जो वार ऑफ बक्सर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद दीवानी का जो दीवानी ऑफ बंगाल को जो चला जाना इन द हैंड्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, दिस वाज वन ऑफ द मेजर इवेंट्स इन द कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। ये बहुत बड़ी वजह बनी। इसके बाद क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि इंडिया की जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको अब इंग्लैंड से अपने वेल्थ और मनी मंगवाने की ज़रूरत नहीं थी कि वो मोर इन्वेस्ट करें कैपिटल इनटू द इंडियन इकानमी, बल्कि वो लोगों से टैक्स इकट्ठा करेंगे, इंडियन लोगों से टैक्स इकट्ठा करेंगे जो वो कमाएंगे,
और उसी टैक्स से वो मर्चेंडाइज परचेज करेंगे और उसी के ऊपर लोगों को मज़ीद और टैक्स लगाएंगे और फिर इसको ये एक परपीचुअल साइकिल बन जाएगा। उनको अपने मुल्क से कुछ भी नहीं लेके आना पड़ेगा और यहाँ का सब कुछ वो लेकर ब्रिटिश ले जाएंगे। दिस वाज द प्लान ऑफ रॉबर्ट क्लाइव एंड दिस वाज अ वेरी रुथलेस काइंड ऑफ कॉलोनाइजेशन जो इंडिया पे इसके बाद इम्पोज हुई। सो वार बैटल ऑफ बक्सर और उसके बाद होने वाली ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपने काइंडली बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ट्रांसफ़र ऑफ दीवानी ऑफ बंगाल के चले जाने से क्या नुकसानात हुए थे। सो आफ्टर दैट नेक्स्ट टारगेट वाज द मैसूर वार, जो भी हम पीछे मैप में देख चुके हैं। एंग्लो मैसूर वार शुरू हुई क्योंकि मैसूर जो था वो अंडर दी कंट्रोल हैदर अली थे और हैदर अली जो थे नेपोलियन बोनापार्ट के साथ राब्ते में थे और ईस्ट इंडिया कंपनी को ये खतरा था कि अगर नेपोलियन बोनापार्ट जॉइंस हैदर अली एट मैसूर देन देयर वाज अ रियल थ्रेट टू दी सर्वाइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो ये उस थ्रेट को दबाने के लिए ये वार स्टार्ट कर दी गई और ये आप मैसूर की स्टेट का मैप भी दे सकते हैं और ये वार शुरू होने से पहले का मैप है। सो फर्स्ट वार वाज फॉट इन 1767 to 69, second was from 1780 to 1784, third one 1789 to 92 and fourth and last one was fought in 1799. In this war Tipu Sultan dies and after his death the control of Mysore goes to East India Company. So साउथर्न इंडिया जो था, साउदर्न इंडिया, वो उसको कॉन्कर कर लिया गया इन 1799। ओके, बैटल ऑफ बक्सर के बाद फोर्थ एंग्लो मैसूर वार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैसूर की स्टेट को एनेक्स कर लिया गया था। आफ्टर दैट सबसे बड़ी पावर मैसूर के बाद अगर कोई थी तो वो मराठा अम्पायर थी। मराठा अम्पायर को कॉन्कर करने के लिए एंग्लो मराठा वार स्टार्ट की गई और एंग्लो मराठा वार्स का आगाज़ एक्चुअल 1775 में फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ। ये एंग्लो मराठा अम्पायर का एक मैप आप देख सकते हैं इंडियन मैप के ऊपर। और फर्स्ट वार वाज फॉट इन फ्रॉम 1775 to 82 and that was not very much conclusive. Second war was fought from 1803 to 1805 and the third inconclusive war was fought from 1817 to 1818 and in this war the Britishers annexed a major portion of India। जैसे हमने भी पीछे मैप में भी देखा, ये जो पूरे का पूरा जो है मध्य प्रदेश का इलाका और जितना भी आपका सेंट्रल इंडिया सारे का सारा आपका और some portion of the southern India they went directly under the control of East India Company after the Anglo-Maratha Wars। सो 1818 में अगर आप कहें तो इंडिया के ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के अंदर तमाम बड़ी ताकतों को शिकस्त दे दी थी। इसके बाद सिर्फ सिखों की एक एम्पायर बच गई थी। तो उसके ऊपर हम बात करते हैं कि सिखों की बारी बाद में क्यों हुई। सिखों की बारी बाद में सॉरी इससे पहले बात कर लेते हैं सिंध की। सिंध वाज कॉन्कर्ड इन 1843 जिसमें तालपुर जो थे वो गवर्नमेंट में थे उस वक्त क्योंकि मुगल्स का तो हुकूमत उस वक्त सिंध पर नहीं थी। तो जनरल नेपियर ने ये कॉन्कर किया था और यहाँ पे जो वार हुई थी इट वाज वेरी स्मॉल वार क्योंकि ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं देखनी पड़ी ब्रिटिशर्स को और बड़े आराम से वेरी इजीली दे टुक ओवर सिंध। अगर पंजाब की बात करें हम तो पंजाब को डिफीट करना या उसको सब्जुगेट करना ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक चैलेंज था बिकॉज ऑफ वन पर्सन, महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह ही डाइज इन 1739 and due to his death ईस्ट इंडिया कंपनी की ये हिम्मत पड़ गई कि वो अब सिखों के साथ भी एंग्लो सिख वार स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस स्टार्टेड फर्स्ट एंग्लो सिख वार in 1845 and it was not conclusive, whereas in the second Anglo Sikh war was conclusive and Punjab was conquered in this war. So Punjab was taken in 1849. After that doctrine of lapse under the Dalhousie was introduced. According to this doctrine अगर कोई भी नवाब या कोई भी किंग या कोई भी प्रिंस अपना कोई भी एक लीगल जो है वो हेयर यानी कि अपना बायोलॉजिकली जो है मर्द यानी कि मेल हेयर को छोड़ के जाएगा जिसका बेटा जिसका हो और उसका अपना बायोलॉजिकल सन हो, अडॉप्टेड सन ना हो,
वो छोड़ के जाएगा, उसकी तो पावर ट्रांसफ़र होंगी आगे। लेकिन अगर ऐसे तमाम नवाब, ऐसे तमाम स्टेट हेड्स जो जिनका अपना सगा बेटा ना हो, जो बायोलॉजिकल बेटा जिनका ना हो, वो उनके सारी की सारी स्टेट जो थी वो उनकी वफ़ात के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम अनेक्स हो जाएंगी। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स दैट that state will be lapsed to in the favor of ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस कानून के तहत 6 स्टेट्स जो थी वो प्रिंसली स्टेट जो है वो अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है वो अनेक्स कर ली गई थी, जिनमें सतारा, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर एंड अवध, ये तमाम स्टेट जो थी ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स 1848 के तहत इनको अनेक्स कर लिया गया था। और आफ्टर दैट द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस केम इन 1857 ऑन आवर टाइमलाइन, जिसकी काजिज़ के हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, प्लीज़ लाइक एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।